In O. Henry's The Last Leaf, two young artists, Sue and Johnsy, shared a studio in Greenwich Village, New York, where Johnsy contracts pneumonia and becomes fixated on an ivy vine outside her window. Believing that when the last leaf falls, she will die, her friend Sue, desperate to save her, enlists the help of their elderly neighbor, Mr. Behrman, a struggling artist who, in a selfless act, paints a lifelike leaf on the wall during a stormy night. Giving Johnsy the will to live while he succumbs to pneumonia himself, ultimately sacrificing his life to save hers. The story explores theme of hope, friendship, and the power of art through its symbolic last leaf and the ironic twist of Mr. Behrman's selfless act. Dear students, as according to board's point of view, they ask some of the main questions regarding story, regarding the element of the story. Like they can ask you that explain the plot of this story, explain the setting of this story, or they will ask any of the characters, and they can talk about symbolism and theme, and they can ask any of the questions. So we have to discuss this story in detail, and we have to critically evaluate this story. So let's discuss some of the key points, key elements of the story. First one is setting. Setting of this story, The Last Leaf, is Greenwich Village, New York City during a pneumonia epidemic, and it is the winter season. Then we have characters. You know that there are three main characters: Johnsy, Sue, and Mr. Behrman. Johnsy is a young artist who is sick with pneumonia and believes her life is tied to the last leaf on the vine, and as soon as the leaf fall, she will die as well. Then we have Sue, Johnsey's friend and fellow artist who cares for her. Then the third character is Mr. Behrman, an aging artist who lives in the same building and becomes instrumental in saving Johnsey's life. Central conflict of this story is Johnsey's belief that her death is imminent when the last leaf falls, leading to her declining health. Then we can talk about symbolism. The last leaf represents hope and the will to live, as well as the power of art to influence one's perspective. The main point of the story, that theme, the importance of self-sacrifice, friendship, and the power of hope in the face of adversity. So these are all themes, and the story revolves around these themes. अब जहाँ तक आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इस तरह से नहीं पूछा जाता कि जिस तरह से आपको पैराग्राफ दिया जाए जैसे बाकी चैप्टर्स में पूछा जाता है, उसका पैटर्न चेंज होता है, डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम ये क्यों याद करते हैं जब हमें पेपर में मैसेज आएगा और हमने उसमें से लिखना होगा। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपकी स्टोरी में से जो क्वेश्चंस आएगा और जो आपको वन एक्ट प्ले दिया गया है उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, या नॉवल दिया गया है उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, वो इस तरह से नहीं होंगे, बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेनली उनका फोकस ये होता है कि एलिमेंट्स के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, आपने जो स्टोरी पढ़ी है उसके की एलिमेंट्स को डिस्कस करें, उसका प्लॉट डिस्कस करें, या फिर उसकी सेटिंग के बारे में पूछ लेंगे कि उसकी सेटिंग के बारे में बताएं, या फिर किसी कैरेक्टर के बारे में पूछ लेंगे कि आपने एक स्टोरी जो अभी पढ़ी है रिसेंटली, आप उसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें और उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या था। इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से जो हमारा सैम्पल पेपर हमारे पास बोर्ड की तरफ से आया है, फेडरल बोर्ड की तरफ से, उसमें से 2 क्वेश्चंस ये हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, हाउ इज़ कॉन्फ्लिक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द प्ले टू मेक इट एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ राइटिंग फॉर द रीडर, इलैबोरेट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों क्वेश्चन, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। 6 नंबर का आपका ये पार्ट होता है और आपको ये क्वेश्चंस लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। द लास्ट लीफ स्टोरी के प्लॉट के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपोजिशन आता है। एक्सपोजिशन यानी कि किस तरह से ये स्टोरी एक्सपोज होती है, किस तरह से इंट्रोडक्शन हमें मिलता है और हमें पता चलता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और कहाँ पे सेटिंग है स्टोरी की और स्टार्टिंग में होता क्या है। ठीक है, एक्सपोजिशन में हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी है और फिर हमें 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जो कि
गर्ल्स होती हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी में आई होती हैं और बेसिकली वो पेंटर्स होती हैं बाय प्रोफेशन। और फिर हमें उस सिटी के बारे में बताया जाता है जो कि है ग्रीनविच विलेज के नाम से। और फिर विंटर का सीज़न आ जाता है, निमोनिया फैल जाता है और उनमें से एक जो दोस्त है जॉन्जी, उसको निमोनिया हो जाता है। फिर राइजिंग एक्शन की जब हम बात करते हैं तो राइजिंग एक्शन में सू की जो टेंशन है वो बढ़ जाती है। फिर वो बहरमन के पास जाती है, बहरमन से अपना मसला डिस्कस करती है और उसको सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। फिर जो है वो क्लाइमेक्स की अगर हम बात करें तो क्लाइमेक्स हमारा होता है स्टॉर्मी नाइट, जो कि क्लाइमेक्स क्या होता है कि वो एक ख़ास पॉइंट होता है जिसमें आप क्यूरियस होते हैं कि इसके बाद क्या आएगा। इंटरमिशन जिस तरह से हमारी मूवीज़ में होता है तो हमें एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है हमारे अंदर कि इसके बाद क्या होगा। तो क्लाइमेक्स हमारी स्टोरी का आता है कि स्टॉर्मी नाइट जब आती है और जॉन्जी इंतज़ार कर रही होती है कि आखिरी पत्ता जो है वो गिरेगा और मैं भी मर जाऊँगी। तो फिर क्या होता है कि सबको यही इंतज़ार होता है। अब हम एज़ ए रीडर भी हमें हमारे अंदर ये सस्पेंस क्रिएट होता है कि आगे क्या होगा। फिर फॉलिंग एक्शन में जो कि इसका फोर्थ एलिमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता से रिजॉल्व होती जा रही है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि जॉन्जी को इस बात का इल्म हो जाता है कि ये जो पत्ता है वो नहीं गिरा और कुदरत कुछ और ही चाहती है, कुदरत मेरी ज़िंदगी चाहती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर हो जाती है, डॉक्टर उसको विज़िट करता है और फिर सू उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, ठीक है, उसको होप दिलाती है। और फिर एट द एंड कंक्लूजन क्या होता है हमारी स्टोरी का कि एट द एंड जो मास्टरपीस बहरमन क्रिएट करना चाहता था वो तो नहीं कर पाया, लेकिन वो ऐसा मास्टरपीस क्रिएट कर जाता है जो कि उसकी सेक्रीफाइस को शो करता है। यानी कि उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक को पेंटर के लिए एक मास्टरपीस क्रिएट कर दिया और वो उसे जानता तक नहीं था कि उसने एक मास्टरपीस क्रिएट किया है और उसके बदले में उसकी लाइफ चली गई, उसकी लाइफ सेक्रीफाइस हो गई। So that was all about the last leaf. Please note down all these elements and work on your preparation. Dear students, I assure you that if you work on all these elements, there will not be any question you can't attempt. Okay, so all the questions will be relevant. Stay happy, stay blessed, keep shining, keep rocking, keep improving yourself. Thank you so much.